So, namaste everyone. We'll start the session with 1 minute of silence. So, I request everyone to please close your eyes. Thank you all. I'm just sharing my screen and let us know कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं और क्या अब हम आगे करेंगे. Just give me 1 minute. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes. Okay. So I think this is the date sheet for the commencement of these sessions, which I think this is shared with you all. So we have done with the first and second module, that is understanding life and life purpose and goal setting. Then we talked about relationships and empathy, emotional intelligence, self-awareness. We've also had a session on communication skills and professional skills. I'll take today's session on decision-making, leadership skills, and team building. This human values, stress management, and resilience will be taking on Monday. Okay. So that is why I'm just want to discuss with you all that human values, stress management and resilience, ये हम Monday को करेंगे. अभी right now in this session, I'll be taking decision making, leadership skills and team building skills for leading a stable and a balanced life. So before going further, I just want to, share one video with you all. Is this video visible? And please, if voice is not there, please let me know. Voice is coming now? Okay. Yes. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away! Dude, what do I do? Help! We'll be stuck here forever! Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good! You're doing great! There you go! There you go! Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody! Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. Shop, save. Shop, save. Nykaa Pink Summer Sale. Now I can shop and save. All my summer... I'm lost! It just went away! Dude, what do I do? Help! We'll be stuck here forever! We are going around the... Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good! You're doing great! There you go! There you go! Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody! Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Ada, the poor dear. This is basically a video which talks about the effective leadership skills. आपने देखा होगा इस वीडियो में that वो बीच में एक डिस्ट्रैक्शन उनको आ गया था, वो प्लांट का एक लीफ, तो वो एंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था उसे आगे कहाँ से वो लोग जाएंगे. देन उनका जो लीडर था उसने ये देखा कि मेरी पूरी टीम को एक हर्डल ने स्टॉप कर दिया है टू बेसिकली रीच टू द गोल. तो उन्होंने आकर ये बताया समझदारी से कि आपको किस तरीके से उसको टर्न लेते हुए अपना एक रास्ता निकालना है. सो बेसिकली दिस इज अ स्मॉल वीडियो 1 minute 20 seconds. दैट इज व्हाई आई एम सर्चिंग कि क्यों बार बार रुक रही है.
कि आपको किस तरीके से अपनी टीम को लीड करना है. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लीडरशिप स्किल्स एंड दी टीम बिल्डिंग स्किल्स. लीडरशिप स्किल्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर इफ यू रेड भगवत गीता, मैं भगवत गीता की बार बार बात इसलिए करती हूँ बिकॉज इट्स नॉट ओनली भगवत गीता. आप गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ें, आप कुरान भी पढ़ें, हर एक में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लीडर्स दिखते हैं जो अपनी टीम को, अपने साथ लोगों को लेकर चलते हैं फॉर टेलिंग देम हाउ टू लीड अ लाइफ. बहुत से हर्डल्स हमारी लाइफ में आते हैं बिकॉज आवर कोर्स इज ऑन सोल, दैट इज स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ. तो किस तरीके से लीडर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू क्लब द टीम, to connect the team with each other, because it's very important to have conflicts and clashes in the team because we have individual differences. For example, in my team, if I said कि भाई मुझे ये काम ऐसे करना है, मे बी कोई अग्री करे या ना करे, और 4 लोग ये बोले हमें इस काम को ऐसे नहीं वैसे करना है, तो वहां पर अगर मैं अपने ईगो या अपने आप ये कह लो कि बात रखने के लिए बोलूं कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, बीइंग एज अ लीडर, ये बहुत लीडर्स में ये चीज होती है कि हमने ये चीज कह दी तो ऐसे होनी चाहिए. बट द मेन थिंग इज दैट हाउ टू मेक और हाउ टू कनेक्ट योर टीम एंड हाउ टू यू नो कनेक्ट योर टीम टू अ वन पॉइंट, कि वो लोग सब मिलकर एक बात को यस करें, आपसे डर कर नहीं, आपकी बात को समझ कर. So this is very important in every field, either in professional life or in personal life. Because जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी skills की, किसी भी life skills की, whether we talk about emotional intelligence or we talk about communication skills or we talk about leadership skills, ये सभी चीजें हम खाली प्रोफेशनल उस पे होकर नहीं बोलते, हम लोग पर्सनल पॉइंट पे भी रखकर बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे रिलेशंस इधर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हमारे मेंटल पीस को बहुत इफेक्ट करते हैं. अगर हम पर्सनली बोले कि हमारे रिलेशंस में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली और फादर इन लॉ इज द हेड ऑफ द फैमिली, so they act as a leader. So now it is the responsibility of them, or it is the responsibility of both of us, leader as well as the team members, कि हमें किस तरीके से हर प्रॉब्लम को हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है. सो फॉर दैट आई एम शेयरिंग माय पीपीटीज विद यू. So this is the first slide, that is a sense of leadership, जिसमें हमने क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर की भी बात की है, एंड लीडर्स एज लीडिंग every action, directing efficiently and reinforcing success. So if we talk about leaders, whom you think leaders are? क्या लीडर्स सिर्फ बॉस ही हैं? आई थिंक इससे पहले वाली स्लाइड में I have shown this. Yes, this is one of the image which differentiate between boss and the leader. क्या डिफरेंस दिख रहा है आप में? कोई भी बता सकता है आप में से कि इस पूरे सामने पिक्चर में what is the difference that you find out? बॉस इज ऑल्सो कंसिडर एज लीडर, और नीचे बॉस को लीडर का ही नाम दे दिया है. तो हमारा जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, ही और शी इज आवर बॉस, और ही और शी इज कंसिडर एज अ लीडर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड द लीडर? एनी वन ऑफ यू? Boss is one who gives what do you say, he gives the, I mean, I'm not getting the correct word now. Order. Boss is the one who boss is gives the one instructing. who gives us the order. Yeah, yes. No? The leader is one who works with them. Very true, very true. Anyone else? From this picture, what is your perception about boss and the leader? इसमें मैम जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बॉस जो है ऑर्डर दे रहा है और वो उस पे उसके ऑर्डर पे वर्क कर रहे हैं, और लीडर जो है वो उनके साथ टीम वर्क करके काम कर रहा है. Yes, very true.
सो दिस इज द बेसिकली द रोल ऑफ अ लीडर। अब हम लीडर्स की बात करते हैं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप ऑटोक्रेटिक भी, हिटलर पता है, हिटलर के बारे में सबने सुना होगा, है ना। अभी नॉर्थ कोरिया का जो किंग है वो भी लीडर है, हमारे मोदी जी भी लीडर हैं, है ना। और क्या कहते हैं, वी आर लिविंग इन अ कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक। तो आप ये देखिए, सी द डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द पर्सनालिटी ऑफ अ लीडर। हिटलर भी लीडर था, नॉर्थ कोरिया का जो किंग है वो भी लीडर है। अभी हमने पीछे एक न्यूज में उसकी क्लिपिंग आ रही थी जिसमें वो अपने ऑफिस में आ रहा था, तो एवरीवन गो डाउन कि भाई हमारा वो लीडर आया है। लेकिन अब देखो, हमारे यहाँ के जितने लीडर्स होते हैं वो आम जनता के साथ चल रहे होते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि if you get that higher position in your life, in your profession, or at anywhere, if you are leading your family, be a transformational leader, because that transformational leader has a very good IQ. That transformational leader is the leader who thinks कि what my team wants, जो कि अपनी टीम के साथ चलता है, उसके बारे में सोचता है। तो सिमिलरली अगर हम देखें, गीता की बात करें, बिकॉज वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट हमें एग्जाम्पल लगता है, बिकॉज दैट इज द मैनुअल। क्योंकि इट्स नॉट ओनली, आई एम राइट नाउ, आई एम नॉट टेकिंग गीता एज अ रिलीजियस टेक्स्ट, आई एम टेकिंग गीता एज एन इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल फॉर लीडिंग अ लाइफ, बिकॉज आई हैव रेड दैट। एंड सेम थिंग्स लाइक माई मुस्लिम फ्रेंड्स टोल्ड मी कि कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में भी ऐसा लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी ऐसा लिखा है। तो कहने का मतलब, अगर हम लीडरशिप, बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भगवत गीता को मैनुअल कहा जाता है, जो हमें गाइड करता है व्हाट इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। तो वहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो हमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई से ही सारी ये स्किल्स दिख जाती हैं, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से टीम लीडर की तरह एक्ट करना चाहिए। बिकॉज टीम लीडर का रोल खाली ये नहीं है इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे आप फर्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, दैट बॉस इज गिविंग जस्ट द इंस्ट्रक्शंस कि ऐसे करो, ऑर्डर दो, चलो आगे। हमें इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप नहीं अपनानी है, हमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को फॉलो करना है। दैट इज इन द सेकेंड पिक्चर, जिसमें टीम के साथ लीडर इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क। आप अपनी टीम को खुश करने के लिए अगर आप उनको रास्ता बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टास्क दिया और आपको लग रहा है आपकी टीम को नहीं समझ आ रहा, तो आप उनको हेल्प कर दोगे तो आपकी पोस्ट छोटी तो नहीं हो जाएगी। हम ये बातें क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड प्रोफेशंस में तभी आता है जब हमारे लीडर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स नहीं हो। तो बीइंग एज अ लीडर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जिंदगी में कभी लीडर नहीं बनोगे। हो सकता है आप अपने घर के लीडर हो सकता है आप अपने प्रोफेशन के लीडर हो सकता है प्रोफेशन में जो आपका लीडर है उसने आपको कुछ ऐसी पोस्ट दी हो कि आपके अंडर भी कोई लोग काम कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो कि आपकी टीम आपके साथ होके चले। डर कर कि मेरा बॉस आ गया, अब मुझे डर लग गया, मैं इधर से उधर भी नहीं हिल सकता या हिल सकती। आप ये देखिए, होता है ना कई बार हमें ऐसे बॉस मिलते हैं, ऐसे लीडर्स मिलते हैं कि जिनके आने से खुशी होती है, तो लगता है बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि बॉस के आने से लगता है यार ये 4 दिन और छुट्टी ले लेता तो हम आराम से काम कर लेते। तो हमें फसी लीडर नहीं बनना, हमें वो लीडर बनना है जो टीम के साथ काम करे। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि प्रोफेशन में जो अभी अभी राइट नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, कि बहुत स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, टीम बनती है, टीम बिल्डिंग, मतलब कनेक्ट लीडर दिखाता है कि मुझे टीम बहुत स्ट्रांग चाहिए, बहुत क्वालिटेटिव चाहिए, लेकिन कुछ ही महीनों में वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन ही ये होता है कि लीडर लीडर तो बन गया, बॉस तो बन गया, लेकिन उसने साइकोलॉजी ऑफ द टीम नहीं समझी। उसने ये नहीं समझा कि मेरी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, टीचर इज द लीडर ऑफ द क्लास, वी ऑल अग्री, यस और नो? यस ना? तो टीचर इज द लीडर ऑफ द क्लास। व्हाई वी से व्हेन वी ट्रेन टीचर्स फॉर द क्लासरूम, हम उनको ये क्यों कहते हैं कि आपको क्लास में आपके पास 30 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, यू हैव टू रीच टू द साइकोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को समझना जरूरी है। आपके पास आप जितने मेंबर्स हो यहाँ पर,
आप सबके पास एक पूरी टीम होगी, आपके अंडर भी काम कर रही होगी, आपके साथ भी काम कर रही होगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल बीइंग एज अ लीडर या बीइंग एज अ सीनियर पर्सन, आप उनको कोई काम देते हैं तो आप उस काम को किस तरीके से बोलेंगे? क्या आप ऑर्डर के वे में बोलते हैं या आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे? और कैसे कहते हैं? क्योंकि कहने, जैसे हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में बात की थी ना, कि कहने और आप बात किस तरीके से बोल रहे हैं सामने वाले को, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इम्पैक्ट्स ऑन द माइंड ऑफ द सामने वाला जो भी पर्सन है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई आपको जैसे फॉर एग्जांपल फराह मैम की टीम है, हाँ, वो उनको कुछ लीड करना है और उनके अंडर जो है 4 या 5 लोग प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ फराह मैम को कोई काम कराना है, अगर वो ये बोलती हैं हाँ जी मैंने आपको ये काम बोला है, मुझे 4 दिन के अंदर चाहिए, लीडर वाला वो रुतबा दिखाएंगी, वो रौब दिखाएंगी, टीम उनकी काम तो करेगी, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं क्रिपिंग होती रहेगी, भाई कैसी है, मुझे कैसे बोलकर चली गई है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम भी तो इंसान है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ फरा मैम सेज टू मतलब अपनी वाली टीम को कि दिस इज द वर्क वी हैव टू कंप्लीट इन 4 days, आई एम विद यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे। सी दी डिफरेंस कि पहले और उस टाइम पे, जो सेकंड टाइम पे जिस तरीके से इन्होंने कॉन्वर्सेशन किया अपनी टीम से, तो उस टाइम पे वो टीम कैसे बात करेगी? यस मैम, आई विल डेफिनेटली फिनिश द वर्क इन 4 days एंड डोंट वरी, वी आर विद यू, हम लोग जी जान से दिन रात एक करके इस काम को 4 दिन में खत्म करेंगे। ये जब फीलिंग हमें सामने अपनी टीम से मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में कि शायद हम उनके साथ, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग बन रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में जब आप जाते हैं ना, तो दैट ऑल्सो इज वन ऑफ योर सेकेंड फैमिली। हम लोग काम करने घर से कितने बजे निकलते हैं? ऑलमोस्ट 8 बजे तक सब निकल जाते हैं, 8, 8:30। स्कूल टीचर्स 7:30 निकल जाती हैं। तो आप सोचिए 7:30 या 8 बजे हम अपना घर छोड़ते हैं और शाम को 6-7 बजे घर आते हैं। अगर हमारा ऑफिस जॉब है या यूनिवर्सिटी जॉब है या अगर स्कूल जॉब है, तो भी हमें मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक घर आते हैं। यानी हम अपने दिन का वो क्वालिटी टाइम, जो एक्चुअल में जिसे हम दिनचर्या कहते हैं अपनी, वो पूरा हम अपने प्रोफेशनल उस पे प्लेस पे अपना जो है टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो दैट दैट प्रोफेशनल प्लेस इज ऑल्सो आवर सेकेंड फैमिली। तो हमें वहां पर भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को, अपनी टीम बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज लीडरशिप के साथ ही डिसीजन मेकिंग और टीम बिल्डिंग वर्क करती है। एंड कम्युनिकेशन इन सब में आगे पीछे इनके घूमती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन। इसलिए कहा जाता है, WHO ने 10 कोर लाइफ स्किल्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए थे, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हम मंडे को पढ़ेंगे, आपका कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद योर इमोशंस, लीडरशिप स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर हम लाइफ की बात करते हैं ना, तो कोई भी पॉइंट अपनी लाइफ का उठा लीजिए, कोई भी टाइम अपनी लाइफ का ले लीजिए, ये सारी स्किल्स कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशंस को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? हमने अभी यहाँ पे बात की थी लीडरशिप की, जो हमने वो पिक्चर से देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड बॉस। देन कम्स द असेंस ऑफ लीडरशिप। व्हाट इज द असेंस? असेंस मींस व्हाट इज द वी कैन से relevance, what is the importance of leadership, what is the purity of leadership। असेंस मतलब वो दिल से निकलना चाहिए कि वो मेरा लीडर है। So one of the picture is this, which gives us the quality of a good leader। इंस्पिरेशनल होना चाहिए, उसके गोल्स क्लियर होने चाहिए। लीडर्स हमेशा, लीडर्स के पास विजन होता है, कोई भी लीडर विदाउट विजन नहीं होता। क्योंकि जब एक लीडर अपने विजन को लेके चलता है ना, जैसे अगर हम बात करें ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया था? अर्जुन के वो सारथी तो बने थे, लेकिन वो हर मोड़ पे उसको लीड कर रहे थे, हर मोड़ पे उसके लीडर बन के उसको रास्ता दिखा रहे थे। सो क्लियर कम्युनिकेशन, गुड एग्जाम्पल, आप ये सब चीजें देखो, आपको भगवान कृष्ण में दिखेंगी। तभी भगवान कृष्ण को ये बोला जाता है ही इज अ गुड लीडर, बिकॉज उन्होंने अपनी टीम को सारथी बन के भी, सारथी क्यों बने थे? सारथी का क्या मतलब? रास्ता दिखाता है। तो लीडर्स ऑल्सो एक्ट लाइक दिस ना, कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, अपनी टीम को रास्ता दिखाते हैं कि दिस इज माई विजन, हम सबको मिलके इस विजन को फुलफिल करना है। So leaders, they are leading every action, directing efficiently
and reinforcing the success. क्योंकि बिना इसके, this is the second point which talks about team building. अगर एक लीडर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक पहुंचाना है, तो दैट लीडर वांट्स अ गुड टीम, अ स्ट्रॉन्ग टीम. क्योंकि बिना टीम के, आप क्रिकेट मैच को देख लीजिए, क्रिकेट मैच में अगर जो हमारा उसमें कैप्टन होता है, उसका आईक्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका ईक्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसका एसक्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होता. आईक्यू इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ईक्यू इज इमोशनल क्वेश्चन, एसक्यू इज योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन. ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है इंटेलिजेंस. कहाँ पर उसे इमोशन अपने दिखाने हैं, कहाँ पर उसको इंटेलिजेंस दिखाना है, कहाँ वो स्पिरिचुअल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, उसके अंदर एम्पैथेटिक एटीट्यूड होता है. तो अगर टीम लीडर के अंदर ये तीनों क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग है, आए हैं, तो वो अपनी जो टीम है उसे भी बांध कर रखता है अपने साथ. क्योंकि टीम बिल्डिंग जो है ना, it plays a very important role in giving the successful results. कई बार रिजल्ट्स नहीं भी अच्छे आते, लेकिन लीडर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना टुवर्ड्स दी टीम, तो टीम कहती है, टीम के अंदर वो जज्बा आता है कि हम नेक्स्ट अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 10% दिया है, तो हमारे लीडर को, हमें पता है प्रॉब्लम हुई है. बट बीइंग एज अ टीम, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प आवर लीडर एंड टू गिव हैप्पीनेस टू आवर लीडर. तो उसके लिए वो जी जान से काम करते हैं. बहुत बार हम आपके टीवी एड्स में भी एग्जांपल्स आती है ना, लीडर्स अच्छे होते हैं तो ऑफिसेज में लोग शाम के ओवर टाइम भी करके चले जाते हैं, लेकिन लीडर्स अच्छे नहीं हो तो वो 5 बजे का टाइम भी बहुत मुश्किल से कटता है. तो वो एटमॉस्फेयर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, वो इस एटमॉस्फेयर को अगर हमें कंजीनियल बनाना है, तो वी शुड वर्क इन अ टीम. एंड गुड लीडर्स आर दी वन हु बिलीव्स इन टीम. बहुत लीडर्स ऐसे होते हैं जो टीम तोड़ने की बात करते हैं. We don't want such leaders and we don't want to be like that leaders. Good leaders are the one who believes that teamwork is the best, solution for giving a solution to any problem and solution for giving any results in a qualitative way or a better way. क्योंकि जहां टीम टूट जाती है ना, वहां काम नहीं होता. Similarly, it's about our personal life. पर्सनल लाइफ में भी क्या होता है, क्या कहा जाता है कि हर फैमिली में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. यस और नो? होते हैं ना. हर फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस भी होते हैं. बिकॉज जैसे हम टीम की बात कर रहे हैं, जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं, सिमिलरली फैमिलीज में भी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. हम टीचर की बात की कि टीचर एक है और उसको सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है. तो व्हाई नॉट इन फैमिलीज? अगर फैमिलीज में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और लीडर सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेगा, तो दैट फैमिली एक्ट्स एज दी बेस्ट फैमिली इन दी सोसाइटी. वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि वी ऑल नो दैट ईच एंड एवरी फैमिली हैज एन अप्स एंड डाउन्स. लेकिन जहां पे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट ना कर अपने घर की बात बाहर बताते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे घर में तो सब लोग हमारे अगेंस्ट है, हमारी बात नहीं सुन रही, बट बाहर वाला जो है वो हमारा बहुत वेल विशर है. तो हमें वो बाहर वाला वेल विशर 2 मिनट के लिए क्यों लगता है? क्योंकि दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी कनिंग, बिकॉज वो चाहता है कि मैं इनकी फैमिली की बात सुनूं और 4 लोगों में करूं. बट उस टाइम पे हम लोग इमोशनली वीक हुए होते हैं और हम अपनी बात उनसे कर देते हैं. होता है ना ऐसा बहुत बार. तो फिर वही इंसान हमारे फैमिली का मजाक उड़ाता है 4 लोगों, और फिर जब जब हमें बाद में पता लगता है ओ ऐसा भी हुआ था, पर जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, तब तक टाइम बहुत निकल जाता है, जिंदगी बहुत आगे बढ़ जाती है. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल स्किल्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड while dealing with anyone at any time. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही लीडरशिप स्किल्स काम आती हैं या टीम बिल्डिंग काम आती है. ये सब स्किल्स जो हैं हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में. एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक लीडर के अलावा कोई नहीं कर सकता. मैं ये बोलूं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आई एम द लीडर ऑफ एनी टीम, ABCD 4 मेंबर मेरी टीम में है, आई एम द लीडर ऑफ दैट टीम. अब मैं अपने माइंडसेट में ये बनाकर रखूं, इसके साथ मैं फैमिली की एग्जांपल भी साथ के साथ दूंगी. अभी राइट नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ.
मैं ये बोलूं, मैं लीडर बन गई, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मेरी क्वालिफिकेशन स्ट्रांग थी, मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रांग था, तो मैनेजमेंट ने मुझे लीडर बना दिया। नाउ इस माइंडसेट के साथ मैं 4 लोगों को अपने मुझे ना बर्फी कैसे दे रहा है, ठीक है? अगर बर्फी में आ जाती है तो ले लेना, नहीं आएगी लड्डू तो फिर लड्डू ले लेना। लड्डू एक तो वो छोटे दाने वाले होते हैं, वो जो बड़े दाने होते हैं। कोई भी दोनों में से। सो अभी मैंने ये बोला कि बीइंग एज अ लीडर मेरे अंडर 4 लोग हैं। अब मैं ये सोचूं कि मेरी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और मोटे दानों वाले को दे सकते मुझे लीडर बनाया वो गया ले है। लेना, वो ले लेना। तेरे पास है पैसे? अगर थोड़े ज्यादा लगे 10-20 रुपए डाल देना। अच्छा फिर मुझे बता देना। Namika, Namika, can you mute? यस यस। सो तो मैं अगर ये बोलूं, मेरे 4 लोगों के आगे आई एम द सुपीरियर वन, तो मैं कभी उनसे क्वालिटेटिव वर्क नहीं ले पाऊंगी, और ना ही मैं एज अ टीम लीडर अपने रिजल्ट को अपने मैनेजमेंट के सामने प्रूव कर पाऊंगी, क्योंकि वो बात ही नहीं बन पाएगी, वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा हम लोगों के बीच में। क्योंकि एम्पावरिंग इंडिविजुअल मीन्स कि लीडरशिप आपके अंदर अगर आती है तो सबसे पहले आप एम्पावर करते हो लोगों को, बिकॉज आपके अंदर वो पावर वाली फीलिंग आती है। तो उसमें आपको ये नहीं देखना कि आप पावरफुल हो चुके हो, आपको ये देखना हाउ टू इंस्पायर पीपल, हाउ टू शेयर द विजन, हाउ टू लीड द चेंज। यू हैव टू make the trust of your team on yourself. That is very important. You have to promote growth and development of your team. Then only you get the quality result. Otherwise there is no use of being a leader of that team, because नाम के लिए लीडर बनना, एटीट्यूड में रहना एक अलग चीज है, बट जब आपको एक्चुअल में अपनी क्वालिटीज को दुनिया को विजिबल करवाना है, अपनी विजिबिलिटी करवानी है, तो उसके लिए आपको टीम के साथ रह के चलना पड़ेगा। अगर टीम से अलग हो जाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे, हायर लेवल पे रहोगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपका जो काम है, वो कभी दुनिया के सामने दी बेस्ट के नाम से नहीं आएगा। वो दी बेस्ट के नाम से तभी आएगा व्हेन यू एम्पावर पीपल, व्हेन यू इंस्पायर पीपल, व्हेन यू शेयर योर विजन विद योर टीम, एंड that leads the change with that change has that qualitative work. So in this way, you as a leader, you try to work in a team, you promote team building, because team building जो है, it is very important for leading a, you know what, for getting the quality result, for getting the good results. 100% result टीम बिल्डिंग में ही आता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। आपके पास सामने आपकी दी बेस्ट एग्जांपल इज योर डायरेक्टर ऑफ रीड इंडिया। शी इज अ वेरी गुड लीडर, दैट इज व्हाई यू ऑल आर कनेक्टेड विद हर, और आप दिल से काम करते हैं, वो दिखता है, वो विजिबल है आप लोगों के चेहरे पे, आपकी पर्सनालिटी पे। कई और ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना, फेस इज द मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आप, चेहरा सब कुछ बता देता है कि यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आर यू हैप्पी, और यू आर डूइंग जॉब फॉर द सेक ऑफ जॉब, कि अच्छी मिलेगी तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत लोग करते हैं ना जॉब, बहुत जल्दी स्विच करते हैं, और कई लोगों को हम सुनते हैं वो 10-10 साल, मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, अपनी रिटायरमेंट भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से लेकर बाहर निकलते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड लीडर, उसकी लीडर की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी होती है। एंड नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ अ personal life, because when we talk about life skills, it matters for both the lives, professional as well as personal. अब पर्सनल लाइफ में क्या होता है, अभी हमने लीडरशिप का प्रोफेशनल वे में लेकर गए, पर्सनल में क्या होता है, वी कम टू वन फैमिली एज अ फीमेल, आफ्टर मतलब 25, इट्स अप्रोक्स 24 to 28 ईयर्स ऑफ की एज में हर लड़की की शादी हो जाती है, ऑलमोस्ट 24, 25, 26, 27, 28, किसी भी एज में, ठीक है। इतना लाइफ वो अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के पास जो है स्पेंड करके आती। नाउ व्हेन शी कम्स टू अनदर फैमिली विच इज वेरी न्यू टू हर, उसमें आते ही वो फैमिली ये डिमांड करने लगे, उनके जो लीडर मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली उनके होते हैं, कि भाई ये लड़की अब हमारे अकॉर्डिंग चलने लगे। इज दैट पॉसिबल? डू यू थिंक सो?
एक ही दिन में? इज दैट पॉसिबल? Is that It's not possible? possible. It's No, not it's not possible. possible. It's not possible. So, because she wants space, she wants time to act accordingly, act as per the requirement of the family. She has to adjust. If she wants time to get adjusted in that family, she wants to know what is the value and customs of that family, because it differs from her family. It's not only about one girl, it's for everyone. So, come se come, in my viewpoint, it takes 3 to 4 years to adjust in the family and to understand what is the likings and dislikings of everyone. Yes or no? And same goes to the girl also. She wants कि she marry to a boy and वो उसी का रहे, nobody else. ऐसा भी नहीं है ना, because दोनों तरफ से बात होती है. So the role here comes the role of a leader. That if leader, you know, acts as a role model for the family, कि हाँ अगर वो हर रिलेशन को रिस्पेक्ट दे रहा है लीडर. बहुत बार ऐसा होता है, हम ये देखते हैं कि रिलेशंस में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब एक घर की बात दूसरे घर को, दूसरे घर की बात तीसरे घर को पता लग जाती है. ऐसा होता है ना. वो नौबत ही क्यों आती है? क्योंकि जो लीडर होता है ना फैमिली का, जो हेड होता है ना फैमिली का, उसकी ही स्टेबिलिटी नहीं होती. कभी इस साइड कभी उस साइड, ऐसे कहते हैं ना लोग, वो थाली का बैंगन. तो यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी इफ यू आर अ लीडर एट एनी प्लेस. वो डिग्निटी सिर्फ रॉब से नहीं आती, वो डिग्निटी आपके विजन से आती है, आपकी आइडियोलॉजी से आती है. आप रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप प्यार करोगे तभी प्यार मिलेगा, आप ट्रस्ट करोगे तभी ट्रस्ट मिलेगा. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स which makes you a good leader, and these small steps, they make a strong team. And every leader, whether he is the leader of a family or he is the leader of any organization, he or she wants a strong team for the success. Otherwise, without strong team, leader cannot get success. But leader alone can't get success. वो नहीं ले सकता, वो अचीव ही नहीं कर सकता सक्सेस को या हैप्पीनेस को या पीस को विदाउट अ स्ट्रॉन्ग टीम. So that is why we say, if you are a good leader, if you adopt transformational leadership style, definitely you'll get a quality result. Definitely you achieve to that position where you want to be, where you want to be yourself, or where you want your organization to stand. आपका विजन, जो मिशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, या आपके वैल्यूज और कस्टम्स जो हैं आपके फैमिली के, वो तभी आप अचीव कर पाओगे, तभी आप फुलफिल कर पाओगे. वो कहते हैं ना, बहुत हमने ऐसी बहुत फैमिलीज देखी होंगी, आपने भी बहुत लोगों ने ऐसा सुना होगा कि संस्कार हो तो उस फैमिली की तरह. देखो कितनी जनरेशन से वही वैल्यूज, वही कस्टम्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू अनदर टू अनदर जनरेशन, वो फॉलो हो रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? आप में से कोई बताएगा? क्योंकि अभी तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल लीडरशिप ना. क्यों होता है ऐसा? एनी वन ऑफ यू? एनी वन? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम. हाँ जी, तो प्लीज आप में मैम आपकी वॉइस कट रही है. मीना मैम, आप हैं आज क्लास में? Please repeat your question. हाँ, माय क्वेश्चन इज बेसिकली, हम लोग ये कहते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है हमारे कनेक्ट्स में, हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू सिस्टम हो तो उस फैमिली की तरह. देखो उनके घर में बड़ों ने ये वैल्यू सिस्टम बनाया था, उनके बच्चे भी वो कस्टम्स, वो वैल्यूज, वो ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, और उनके आगे बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं, और जो आज की हम जो वो कहते हैं ना जेड जनरेशन कहते हैं, तो वो भी वो फॉलो कर रही है. ऐसा क्यों होता है? और जबकि आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो पुराने कस्टम ट्रेडिशंस को नहीं मानते, बट स्टिल सम फैमिलीज के बच्चे आज भी अपने बड़ों के, अपने एंसेस्टर्स के, फोर फादर्स के ट्रेडिशन, कस्टम वैल्यूज पे चल रहे हैं. ऐसा क्यों है? व्हाट इज मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हेलो. क्योंकि मैम जो वो उनके पूर्वज हैं वो उनसे सीखते आ रहे हैं, उनके पुराने जो लोग थे उनसे वो मतलब चलता आ रहा है कि घर में एक साथ रहना Am I है, audible? कोई चाचा चाची अलग ना हो, ताऊ ताई अलग ना हो, एक ही साथ बैठ के खाना खाना है. बहुत से घरों में होता है कि किसी का टाइम 9 बजे का, तो उसने 9 बजे आके खाना खा लिया,
11 बजे तो 11 बजे, बट किसी घर में ऐसा है कि सभी लोग इकट्ठे खाएंगे एक साथ बैठ के, तो वो आज भी उनका रूल चला है क्योंकि उनके पूर्वज वो रूल चलाते आ रहे हैं। लेकिन वो क्यों मान रहे हैं? माय क्वेश्चन इज कि वो क्यों मान रहे हैं? बच्चे नहीं मानते ना आजकल के। हेलो, आपने फरा मैम बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी वही एग्जांपल की बात कर रही हूँ कि आज भी बहुत सी फैमिलीज में, बेशक हम डिजिटलाइज वर्ल्ड में आ गए हैं, बेशक वी आर रनिंग टुवर्ड्स मशीन लाइफ, वी आर रनिंग टुवर्ड लग्जरीज लाइफ, बट स्टिल बहुत सी फैमिलीज के वैल्यू सिस्टम आज भी वही हैं जो उनके एंसेस्टर्स ने रखे हुए थे। व्हाई इट इज सो? क्योंकि उनकी एक थिंकिंग फील गुड फैक्टर भी होता है मैम, एक आई कैन से दैट एक फील गुड फैक्टर भी है बहुत सारी चीजों में। बच्चों को भी अच्छा लगता है वो चीजें करके, और उन्होंने भी अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को देखा है, अपने दादा दादी के साथ कैसा वो बिहेव कर रहे हैं और कैसे वो आगे उनको भी कैसे करना चाहिए, उनको वो करके अच्छा फील होता है। वो संस्कार उन बच्चों में बचपन से, जन्म से डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यही करना ठीक है। वो फैमिली की वैल्यूज को फॉलो करके उन्होंने अपने पेरेंट्स को ग्रो करते हुए देखा है। हर हिसाब से ग्रोथ होती है उससे। आपके आपकी सोशल एटिकेट्स, आपके अपनी फैमिली के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सब चीजों से उनको सीखने को मिलता है, तो उनको अच्छा फील होता है, उनको भी उनके घर लगता के है कि ये जो अच्छा है। लीडर होते हैं वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं, शायद इसी वजह से। बाकी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है वो बहुत 14 साल पुरानी है, और 14 साल से ही मेरे उसके घर से रिलेशन चल रहा है। 4 मैं भाई की समझी शादी मेरे नहीं, सामने हुई प्रथम है। का 4:15 बट बजे राशि से पूछ लूं प्रथम। हाँ बोलिए फरा मैम आप। हाँ, तो मैं फ्रेंड की बात बता रही हूँ। चारों भाइयों की शादी मेरे ही सामने हुई है, तो उनकी चारों ही बहुएं एक साथ मिलजुल कर काम करती हैं। घर का खर्च आज भी उनके डैडी ही चलाते हैं, चारों भाई कमाकर अपने डैडी को देते हैं। मतलब उनके घर का सब कुछ देख के इतना अच्छा लगता है कि आज के जमाने में भी बच्चे माँ बाप की सोच पे चल रहे हैं, सबके अंदर संस्कार अच्छे हैं। तो बहुत आपने, सीमा मैम आपने भी और फरा मैम आपने भी जो एग्जांपल्स दी वो बहुत अच्छी थी, और एक्चुअल में ऐसा होता है। उसमें क्या फरा मैम, एक चीज मैं ऐड करूंगी, उसमें स्ट्रॉन्ग लीडर या पूर्वज हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग थे ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, रिलेशंस में आके इमोशनली वीक हर कोई हो जाता है। द मेन थिंग इज दैट कि उनके जो वैल्यू सिस्टम थी ना, वो वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फैमिली की बॉन्डिंग, फैमिली का ट्रस्ट एक दूसरे पे। जब आप बॉन्डिंग दिखाते हो, मैंने एक एग्जांपल शायद पिछली क्लास में आप लोगों से ही शायद डिस्कस किया था या कहीं किया था, कि हम आज ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो रेडीमेड चीजें कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यानी स्वेटर्स भी वो जो है ब्रांडेड स्वेटर्स पहनते हैं। हमारे टाइम पे मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैं क्लास 7th या 8th तक, इवन जो वुलन ड्रेसेस भी होती थी ना, पूरा स्कर्ट टॉप या पूरा फ्रॉक, वो भी हमारी नानी या दादी बनाती थी। आज ऐसा क्यों नहीं है? हम, हमारी जनरेशन के लोग भी तो दादी तो बनी गए होंगे, नानी दादी सॉर्ट ऑफ बनी गए होंगे, हम लोग ये क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये लगता है पैसा दिया बाहर मार्केट में, ब्रांडेड चीज खरीद के ले आओ। तो आज हम वी ऑल आर द स्लेव्स ऑफ मनी। तो हमारे अंदर वो वाला लीडर वाला नहीं आ रहा ना। तो हमारे बच्चे उसको क्या, उस टाइम पे क्या था, छोटी सी चीज भी घर में आती थी ना, तो लीडर आते के बोल, उनको पता था कि हमने ये चीज कमाई है, पैसों से कमाई है, मेहनत से कमाई है। तो उस कमाई से, सच्चे मन से, प्योरिटी से, वो मेहनत है हमारी, है ना। तो लेकर आते थे, तो वो पूरे घर के लोगों को बताते थे ये चीज मैंने खरीदी है, सब लोग मिलकर इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरा पूरा खून पसीना इसमें लगा हुआ है। आज चाइना की तरह हम हर चीज को यूज एंड थ्रो करते हैं। जितना सस्ता कपड़ा हुआ है उतना ही कपड़े की वैल्यू खत्म है। खाना आप देखो, आज मार्केट में निकल जाओ, इवन छोटा से छोटे वेंडर में भी आपको भीड़ दिखेगा, क्योंकि घर पे कोई खाना बना के राजी नहीं। एक वो वाली बात आ गई ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट। उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई महंगाई, है ना। तो हम इन सब चीजों को अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि महंगाई है तो वी बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। सबसे बड़ी बात है, देखो हम अगर हम पुराने टाइम की बात करें, हमारे जो लीडर्स होते थे घर के, वो सिर्फ एक ही होता था, है ना, हमारे पापा या हमारे दादू या उनके पापा। अगर हम वो वाली पुरानी जनरेशन की बात
बात करते जाए अपने एंसेस्टर से, तो हर घर का लीडर एक ही होता था, जेंट्स, है ना। और वही पूरे घर के 10-15 लोगों को पालते थे, पालन पोषण करते थे। तो वही कमा कर लाते थे, सब में बंटता था, सब प्यार से खाते थे, आपस में इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग थे, प्यार भी था, चीजों की कदर भी थी। आज मैक्सिमम हर घर में 1 या 2 बच्चा होता है, और दोनों माँ बाप उस बच्चे के माँ बाप हैं, और ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी फैमिली जिसको वो जॉइंट फैमिली कहते होंगे, तो दादा दादी या नाना नानी साथ रहते होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रहता। 1 या 2 बच्चा घर में होता है, 2 तो मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, आजकल मोस्टली 1 ही है। हाँ, उस एक बच्चे को पालने के लिए सारे लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, है ना, कि भाई मुझे हमें बच्चे को पढ़ाना है, हमें बच्चे का ये करना है, बच्चे का वो करना है। आगे एक बंदा घर के 15 लोगों को पालता था, आज एक बच्चे को पालने के लिए घर में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, सब कमाने निकले हुए हैं उस एक बच्चे के लिए। और उस बच्चे का एक आंसू भी नहीं टपकने देते हम लोग, नहीं आने देते ना। जहां एक आंसू आया नहीं, बेटा क्या चाहिए, उसके आगे वो चीज आ जाती है। यही बेटा जब एक दिन बोलेगा मुझे तारे चाहिए, क्या हम ला कर देंगे? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। फिर उसे रोना आएगा कि मुझे वो तारा चाहिए, वो क्यों नहीं ला के दे रहे आप मुझे, जब सब चीजें, क्योंकि उस बच्चे को हमने ना कहने की आदत ही नहीं डाली है। तो हम बीइंग एज अ लीडर, हम अपनी फैमिली में क्या ओरिएंटेशन दे रहे हैं? हम दे ही नहीं रहे कुछ भी ढंग का, हम वैल्यू सिस्टम ही नहीं दे रहे। क्योंकि लाइफ का मतलब ही ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ईसीजी मशीन में जब वो लाइन आती है, वो लाइन अप एंड डाउन आती है, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई इंसान अभी जिंदा है। जहां वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, डॉक्टर कहते हैं इंसान ने अपनी देह छोड़ दी, है ना। तो अगर लाइफ का मतलब अप्स एंड डाउन्स है, तो क्या हम बच्चों को वो अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार कर रहे हैं बीइंग एज अ लीडर? नहीं, हम सिर्फ बच्चे को वो अप ही दिखा रहे हैं। इसलिए जहां पे जरा सा डाउन आता है ना, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम जो नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बने, क्यों बने हमारा बच्चा? उसकी भी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, उसका भी तो डिसीजन लाइफ का कुछ और होगा। हम जो बनना चाहते थे हम बने, हमारे माँ बाप ने नहीं बोला ना। जब हम ज्वाइन, क्योंकि हमारी जनरेशन में पेरेंट्स बस ये कहते थे पढ़ लिख जाओ बस। उसके बाद हमें ना जॉब की टेंशन होती थी, ना हमें क्या बनना है, हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब हमारे नहीं होते थे कि हमें ये करना है। लेकिन आजकल का बच्चा 5th स्टैंडर्ड से ही अपना दिमाग चलाने लगता है, मुझे वो अचीव करना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, बीइंग एज अ पेरेंट हम भी ऐसे ही हैं, मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ। हम भी यही कहते हैं, हम लोग वर्किंग है, हम लोग कमाने निकले हुए, तुम नहीं करोगे तो कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? कहते हैं 2 वक्त की रोटी भगवान सबको देता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमें भागा दौड़ी करने पे मजबूर करती है, बिकॉज वी आर नॉट अ satisfied human being. So being as a leader of the family, being as the person who leads the family, it is our responsibility to inculcate such value system among our youngsters. अगर हम ही नहीं उनके अंदर वैल्यू सिस्टम डालेंगे, तो वो आगे इन वैल्यूज को कैसे प्रिजर्व और ट्रांसफर करेंगे? हम कहते हैं ना, हम जो चीज सीख कर आए, बहुत बार ऐसा होता है हम कहते हैं हमारे अंदर पेशेंस हमारी मॉम की वजह से, क्योंकि हमने उनको ऐसे देखा था। तो हमारे बच्चे क्या कहने के लायक होंगे? वो तो ये कहेंगे कि जब हम बचपन में रोते थे तो मम्मी कहती थी अच्छा रो मत, क्या खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, हमारी सुई यहाँ पे अटकती थी, हमें काम करने दो लैपटॉप पे, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, जो खाना है उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। बहुत इजी कर दिया है हमने, तभी तो रिलेशंस बहुत इजी हो गए आज की डेट में। हमने लाइफ को इतना इजी, वो कहते हैं ना इजी कम इजी गो, हमने लाइफ को ऐसे बना दिया, रिलेशंस को ऐसे बना दिए हमने। तो वही हम फिर वापस एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे? एक छोटी एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देते हुए ये बताऊंगी, बिकॉज अगर हम कहते हैं कि बोथ दी पेरेंट्स, फादर एंड मदर, बोथ आर दी लीडर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, बिकॉज हम लोग इतनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में तो रह नहीं रहे कि हम बोले हमारे चाचा जी भी रहते हैं हमारे साथ, हमारे जो है बुआ जी भी रहती हैं या मासी जी भी रहती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो वो रिलेशंस तो वैसे ही हमने अपने बच्चे के खत्म कर दिए। एक एक बच्चा है तो उसको चाचा मामी मासी कहाँ दिखेगा? कोई भी नहीं दिखेगा। सिंगल चाइल्ड है तो अब उसका जो ग्रुप होगा वही उसी के, अब उनके आगे बच्चे, उनके ग्रुप के बच्चों को चाचा मामा अंकल आंटी बोलेंगे, अपने तो रहे नहीं। तो कहने का ये मतलब है, मैं अपनी एग्जांपल क्या दे रही थी, जैसे हम कहते हैं हम थक कर आते हैं। कल मेरा एक सेशन था सीबीएसई का, तो सुबह 8 बजे घर से निकली तो शाम को 6 बजे घर आई। तो माई सन इज इन क्लास 12। तो अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप ये देखो, फील होता है बाद में, ऐसी बात नहीं है। तो ये पर्सनल एग्जांपल है और ये शायद सबके साथ होता होगा, बिकॉज ऑल आर मदर्स हियर।
तो वो अपना कुछ ना मुझे अपनी लाइफ का कुछ डिस्कशन उसे करना था, लाइक स्कूल का कुछ मैटर था, तो वो मुझसे डिस्कस, तो ही वाज वेटिंग फॉर मी कि कब मॉम आए और मैं उनसे बात करूं। तो जैसे ही मैं आई, अभी गेट ओपन ही हुआ तो कहता मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ आ जाओ कोई नहीं, अभी पानी पी के हम करते हैं। तो अपनी बात सुनाने लगा। अब क्या है, हम लोगों के यहाँ वो स्टेमिना भी नहीं रहा, सुबह से थकी हुई थी, तो मुझे बात सुना रहा था और मैं सो गई। मतलब नैप लिया मैंने 10 to 15 मिनट्स का। बीच में मैंने ये सुना कि वो मुझे बार बार ये बोल रहा है कि उठो मॉम उठो, मुझे आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मैं हाँ हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। और मैं 10-15 मिनट के लिए सो गई। और जब मैं सो के उठी है तो आई सॉ कि वो साइड पे बैठ के ना बहुत उदास सा, इमोशनली बहुत मुझे वीक लग रहा है। तो मैंने मतलब एकदम ना, मतलब वो होता है ना, एक डर लग जाता है कि मदर को कि हाँ भाई ऐसा क्या हो गया जो एकदम, क्योंकि खासकर बॉयज के साथ तो हमें ये रहता है ना, वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं, उनकी ना आंखों में आंसू आने चाहिए, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना उनको। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? तो कब से वेट कर रहा था आपको बात सुनाने के लिए, आप तो बात सुनती नहीं, सेशंस में तो अपने बैठ जाती है, मेरी बात सुनती नहीं और सो गई मेरी बात सुनते सुनते। मैं नहीं सुनाऊंगा अब आपको, आपका सुबह से वेट कर। देन आई रियलाइज कि उसको कितना हर्ट हुआ होगा मेरे सोने का। नो डाउट उसको ये पता था मम्मा थकी हुई है, कि उन्हें 10-15 मिनट के लिए नींद आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने अब पावर नैप ले लिया, नाउ आई एम ओके, अब सुनाओ। अब नहीं सुनाऊंगा मैं, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो वाली बात आ गई ना, आप दुनिया के लिए जितने मर्जी अच्छे बन जाओ, जब बीइंग एज अ लीडर आप अपनी टीम के लिए अच्छे नहीं हो, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हो, आप कैसे अच्छे हो सकते हो? तो मतलब देन आई फेल्ट सॉरी कि हाँ मतलब मेरी ठीक है, मैं थकी हुई थी, वो बात अलग थी। या मैं तुम्हें कहती कि गिव मी सम टाइम, बट तुम्हें सामने बिठा के मेरा सोना इज समथिंग वेरी बैड, वो नहीं होना चाहिए था। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जब हमें वो दिल पे लगती है ना, देन वी रियलाइज कि हाँ, कहने को हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, क्या हम एज अ लीडर एज अ पेरेंट्स वी आर डूइंग दोज थिंग्स विद आवर चाइल्ड? तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम पे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे, कि हम वैसा टाइम उनसे मांगेंगे, तो हो सकता है हमें भी सुनने को ये मिले कि हम काम करके आए हैं, थक गए हैं, थोड़ा सो जाए, तब हमें कैसा लगेगा? तो ये चीज है। तो जब हम ये चीजें रियलाइज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें हमारे साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं होती ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। वो धक्के लगना, वो ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है, दैट इज दी सेल्फ एक्सपीरियंस। तो ये ऑलमोस्ट सबके, मीना मीना जी कुछ कहना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म। आप आप अनम्यूट करके बोलिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बार बार मैंने पूरा सेशन ढंग से अटेंड नहीं किया। मैम जो आप बता रही हैं वो सबकी लाइफ में होता है। अभी है ना? 4-5 दिन पहले से मेरी भी एक डॉटर है और मैं भी सिंगल मदर हूँ, तो हम दोनों, मेरी बेटी और हम दोनों ही रहते हैं। और मेरा भी यही होता है कि ऑफिस से जाती हूँ, फिर शाम को घर जाती हूँ, तो कई बार वो उसके साथ पूरे दिन में क्या हुआ वो मुझे बताती है। वो कई बार मैं सुनती हूँ, फिर बीच में मेरे भी कॉल आ जाते हैं। और ऐसी मेरी बेटी समझदार भी बहुत है, उसको पता भी है कि जो मैं काम कर रही हूँ मेरा सपोर्ट भी करती है। पर कभी कभी बच्चों के अंदर इतना बढ़ जाता है, कई बार वो इतना मेरे को सुना देती है। परसों इतना सुनाया उसने मुझे कि तुमको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, टाइम ही नहीं है, बस आओगी तो मेरा ये वाला बैच नहीं बना, मेरा वो वाला बैच नहीं बना, ये रजिस्ट्रेशन करना है, बस उसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। तब मुझे तो लगा कि सबको टाइम देना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक चीज और आ जाती है ना, कि हम एज अ लीडर ऑफ आवर फैमिली, अपने बच्चों के हम लीडर्स हैं, तो हमें क्या चीज करनी चाहिए? अभी ये सामने स्लाइड में दिख रहे हैं ना, एम्पावर पीपल, इंस्पायर पीपल, शेयर द विजन एंड लीड चेंज। तो अपने बच्चों के साथ भी तो यही चीज करनी है ना, तभी तो हम सक्सेसफुल पेरेंट्स और पेरेंट्स लीडर्स ही तो होते हैं अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के। तो हम उनसे जो एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, पहले रोल मॉडल तो बनकर दिखाएं अपने आप को। हमारे पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल थे, वो कैसे एक इंसान पूरे घर को समेट के रखता था। आज हम सारे जने लगे हुए एक बच्चे को ना समेट पाते, है ना, उसको टाइम ही नहीं दे पाते। तो कैसे वो ये सब करेंगे? तो वो टीम बिल्डिंग की जो हम बात करते हैं, वो छोटी छोटी स्किल्स की बात करते हैं, वो बीइंग एज अ लीडर हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। तभी हम बच्चों के अंदर डालेंगे, और यही बच्चे जो कल का फ्यूचर जनरेशन है, जो हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे
ये सच है, ये फैक्ट है जिंदगी का कि ये बच्चे मशीन्स के साथ अपनी जिंदगी काटेंगे। हम लोगों ने तो इंसानों के साथ काटी है ना, इन्होंने मशीन्स के साथ अपनी लाइफ को आगे लीड करना है। तो मशीन्स के साथ लीड करने में तो पीछे इनका बैक सपोर्ट में हम एज अ लीडर रहेंगे ना, कि इनके अंदर वैल्यू सिस्टम रहे, इनके अंदर इमोशंस रहे, वो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे मशीन्स नहीं बने ये बच्चे हमारे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सो नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। सो ये अभी हमने बात कर ली थी, एम्पावर पीपल, इंस्पायर, लीड चेंज एंड शेयर विजन। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन। सो आप ये देखिए, कम्युनिकेशन टिप्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल अपनी दी, मीना जी ने अपनी एग्जांपल दी कि आप देखिए ये इसका जो सर्कल है, कम्युनिकेट टू लीड। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप उस टीम को, आप उस घर को लीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि दुनिया को सेशन देना, लाइफ स्किल्स की बात करना, टाइम मैनेजमेंट की बात करना, अगर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट एज यू नो, हमारे एंसेस्टर्स भी कहते हैं, हमारे प्रोफेसर्स भी कहते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। भगवान ने भी जब मनुष्य का जन्म लिया था तो उसने भी इंसान बन के जिंदगी काटी थी, ये दिखाने के लिए कि मैं भी, बेशक मैं भगवान हूँ, लेकिन गलतियां मुझसे भी हुई हैं। तो नोबडी इज परफेक्ट, बट द थिंग इज दैट कि अपनी वीकनेस को अगर आप जानते हो, अपनी कमजोरियों को जानते हो एज अ लीडर, तो आप अगर उस पे काम करते हो तो इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। सो फर्स्ट इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप बोलते हो आप उसको करो। हो सकता है कभी कभी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी आती हैं हम नहीं कर पाते। अब जैसे कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आई और बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी, तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे बात उसी टाइम पे सुनाने शुरू की और मैं सो गई। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, तो यानी इस सिचुएशन को अगर मैं दोबारा नहीं आने देती, तो दैट मीन्स व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग इज, और प्रीचिंग इज, आई एम प्रैक्टिसिंग इन माय लाइफ। सेकंड, फाइंड योर ओन वॉइस और स्टाइल। आप किसी के कहने पे मत चलो। इफ यू आर अ लीडर, if you think you can lead your family, if you think you can lead your organization or your team, do whatever you want in life, because आपके मन से निकली हुई बात हमेशा ठीक होगी। अगर हम किसी के देखा देखी में अपनी पर्सनालिटी को या अपने वर्किंग स्टाइल को या घर चलाने के तरीके को चेंज करेंगे ना, नहीं हो पाएगा। अगर मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के ही पढ़ सकता है, लेकिन मैं बोलूं कि हाँ बाहर के लोग ये कहते हैं कि बच्चों को फ्री टाइम देना चाहिए, इंडिविजुअल छोड़ना चाहिए, और उनके कहने पे अगर मैं बच्चे को अपने ऐसे कर दूंगी तो मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत है कि मॉम सामने है तो मैं पढ़ूंगा, है ना, या मॉम ने ये काम दिया तो मैं करूंगा। तो यानी मुझे पता है मेरा घर कैसे चलेगा, किसी के कहने पे मुझे घर नहीं चलाना। अगर हम बाहर के लोगों के कहने पे घर चलाते हैं तो वो घर हमेशा खराब होते हैं। एड्रेस ईच पर्सन इंडिविजुअली। आप एक बीइंग एज अ लीडर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर टीम। अगर आप एक को एड्रेस करते रहोगे तो बायसिंग नेचर लगने लगते हैं कि आप उसके प्रति जो है बायस्ड है और बाकियों को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ एनी लीडर। कई बार होता है ना, घर में एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, तो अगर हम एक ही बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो बाकी 2 अपने ही बच्चे होते हैं, वो अपने ही कोख से निकाले हुए, लेकिन उनके अंदर घृणा आ जाती है कि मेरी माँ सिर्फ उस बड़े, मतलब ABCD कोई नाम है, तो ए से ही प्यार कर रही है, हम दोनों को निग्लेक्ट कर रही है, क्या हम क्या बाहर से पकड़ कर लाए हुए हैं? तो अपने ही सगे भाई बहनों के बीच में वो डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे सबको मिलाकर और सबकी ही इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है। लिसन एक्टिवली। जो हमें कोई कुछ कहता है, बेशक वो घर का मेंबर है या हमारी टीम का मेंबर है, हमें उसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमें एक्टिव लिसनर बन के काम करना, हमें पार्टिसिपेशन देना है उसकी लिसनिंग में। वो कुछ बोल रहा है तो जैसे मैंने कल गलती की, ऐसी गलती कोई मत दोहराए अपनी जिंदगी में। बहुत बुरा लगता है बच्चों को, कल देखा था उसका चेहरा मैंने। तो ये चीज होती है, तो अब रियलाइज होता है कि अगर वो होता है ना, जैसे हम लीडर है, हम अपनी घर पे बैठे हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टीम में कोई बात नहीं सुनता, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन जब अपने पर आई और वो कल की सिचुएशन में याद करूं, तो मुझे ये लगता है कि जब मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुझे बुरा लगा, तो उसे कितना लगा होगा। तो ये चीजों को हम किस तरीके से कोप अप करें, ये चीजें हमें, ये छोटे छोटे जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना लाइफ के, वो हमें ये सिखाते हैं कि इफ यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, तो अपने ट्रैक को वापस राइट वे में ले आओ।
क्योंकि आप गलत नहीं कर सकते बट आप कर रहे हो, समझ जाओ अभी भी, नहीं तो देर हो जाएगी। तो वो इंडिकेशंस होते हैं। एडमिट व्हेन यू डू दी एरर, जब भी कोई गलती होती है उस गलती को मानो। ये सबसे बड़ी बात है हर रिलेशन को बचाने के लिए। रिलेशंस वही खराब होते हैं जहां पे गलती नहीं मानी जाती। एक से हुई, दूसरे से हुई, माफी मांग लो, अगर रिलेशन को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। दिस इज ऑल्सो गुड साइन ऑफ अ लीडरशिप। डोंट डिले कम्युनिकेशन। अगर आप कॉन्वर्सेशंस को डिले करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपकी टीम को चाहिए, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप चाहते हो आपकी टीम ये काम करे और ये वाला काम करके वो बहुत अच्छा कर सकती है, और फिर आप ये सोचते हो नहीं नहीं मुझे अभी नहीं बताना, मैं बाद में बताऊंगी, तो वो एक गैप रहा। अगर आप कम्युनिकेशन डिले कर देते हो ना तो रिजल्ट्स पुअर आते हैं। इसलिए जो भी कहना है, टीम को अच्छा लगे बुरा लगे, बट जो माइंड में है एज अ लीडर कह दो। सिमिलरली जो वैल्यू सिस्टम आपको घर पे रखने हैं, आप बच्चों को बोलो दिस इज माय वैल्यू सिस्टम, मैं चाहती हूँ इस मर्यादा के बीच में हम अपने घर में रिलेशंस को रखें, इसके बाहर हमारा कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी घर में रात को लेट नाइट पार्टीज नहीं अलाउ होती, तो आजकल के बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन आप ये प्यार से बच्चों को अगर सिखाते हो, क्योंकि आप लीड कर रहे हो उस घर को, तो आप ये सिखाते हो कि बेटा प्लीज, या अपने बच्चे को या बच्ची को कि भाई 9 के बाद घर में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर के संस्कारों के खिलाफ हो। तो आप यही बात बहुत प्यार से बच्चे को, वो नेक्स्ट स्टेप जो आपका आ रहा है कम्युनिकेट फेस टू फेस, तो बहुत प्यार से समझाते हो तो बच्चे समझते हैं। अपनी टीम को कोई चीज समझानी है प्रोफेशनल लाइफ में तो वो समझेंगी, बट द तरीका ये ऐसा होता है कि आप आपस में इन पर्सन बात करो। अगर आप घुमा फिरा के या कुछ लेटर उनके पास सर्कुलर भेज देते हो तो उसमें प्रॉब्लम हर एक को रहती है। होता है ना बहुत बार ऐसा, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर एक सर्कुलर निकाल देता है, कल शाम को कल से लेके अगले 3 दिन तक 7 बजे के से पहले कोई घर नहीं जाएगा, तो सबको बहुत बुरा लग जाता है कि ये ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शंस आ गई और बॉस ने अपना एटीट्यूड दिखा दिया। लेकिन वहीं आकर टीम के पास, टीम के स्टाफ रूम में आकर या जहां भी टीम बैठती है वहां आकर वो लीडर बोले कि 3 दिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को सबको, और मैं भी आपके साथ 7 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे, उसके बाद सब अपने घर जाएंगे। इट इज ओनली फॉर 3 days एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल। तो टीम 101% आपको सपोर्ट करेगी। यस और नो? तरीका सिर्फ ये है कि हाउ यू कम्युनिकेट, आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचा रहे हो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर टीम। अपनी टीम को समझो, आपकी टीम की क्या रिक्वायरमेंट है बीइंग एज अ लीडर। सिमिलरली आपके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है इन अ फैमिली, बीइंग एज अ लीडर, बीइंग एज अ पेरेंट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके जो इच्छाएं हैं उन्हें समझो। बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है, बच्चों की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमें लगता है बेफालतू है, ये पूरी नहीं करनी, लेकिन तरीका समझाने का, उनसे कॉन्वर्सेशन करने का तरीका वो हमारे हाथ में होता है, सो दैट हम उन्हें समझा पाए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट हमें है वो उनको नहीं है, बट कैसे उनको उस बात को पहुंचाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is fostering growth and innovation. If you have that leadership quality, if you have that decision making quality, कि कैसे decisions लेते हो आप लाइफ में, कैसे आप अपनी लाइफ में टीम बिल्डिंग को प्रमोट करते हो, so this is the role of leadership in fostering innovation and ideation. यानी आप creativity लेकर आते हो लाइफ में। First step is you have to establish a vision and encouraging risk taking. You have to create a supporting environment. जैसे मैंने बोला ना, घर हो या बाहर हो, हम जहाँ पे, हम हर जगह लीडर्स हैं। पेरेंट्स घर पे लीडर्स होते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लीड कर रहे हैं तो वहां पे लीडर हैं। तो हमारे ऊपर है कि हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले के सेशंस में हमने ये बात जरूर बोली थी कि पॉजिटिव माइंडसेट ही सारे रिजल्ट्स को लेकर आता है। अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचते ना, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को लीड नहीं करते ना, तो लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी ना हमें बहुत बड़ी बड़ी लगती। तो हम अगर पॉजिटिव है ना, अगर हम ये सोचते हैं ना ये प्रॉब्लम आई है, हम सब साथ में हैं और ये चली जाएगी, तो वो सच में चली जाएगी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं ना, क्रिपिंग करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम इतनी से इतनी बड़ी लगती है। एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज, जो भी आपके साथ आगे पीछे लोग हैं उनको एम्पावर करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और सपोर्ट करो, ये बहुत जरूरी है।
जो भी फेलियर्स आते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर आते हैं, कई बार रिलेशनशिप्स भी फेलियर्स बन जाते हैं, तो उनसे लर्निंग लो, कोसो मत किसी को भी, लर्निंग लो कि हमें ऐसा हुआ तो अब हम ऐसा हुआ है तो रोते नहीं रहेंगे ना, अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, उस पर वर्कआउट करो। एनकरेज ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि लाइफ जो है कभी भी चली जाएगी, हम सबको पता है, लेकिन कब जाएगी ये किसी को नहीं पता। हम इस दुनिया में, इस समाज में, इस धरती पे कब तक है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जब तक है तब तक जिंदगी को लीड करना हमारे हाथ में आ, क्योंकि आज हम लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं, आज हम डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था जब वो इमोशनल टर्मोइल में आया था, कुरुक्षेत्र की बीच में जाकर रथ जब खड़े किया था, तो अर्जुन ने कहा था ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे क्यों लड़ूं। तो भगवान ने क्या कहा था, इस टाइम पे तुम्हारा कर्म क्या है उस पे फोकस करो, सही डिसीजन लो। अगर तुम इस टाइम पे युद्ध के बीच में आकर ये बोल रहे हो कि वो तुम्हारे अपने हैं, तुम नहीं लड़ोगे, वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि युद्ध करने आए हैं सभी। तो इस टाइम पे व्हाट इज द एट दिस टाइम व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो आपका कर्म है आपको वो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके डिसीजन आपके कर्मों के अनुसार बनते हैं। आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल हम मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी में हम ये डिसीजन लें वहां बैठकर, चलो मैं अपने टीम को कॉल करती हूँ कि कल ये असाइनमेंट करनी है तो ये हमें करनी है, तो जिनके साथ मैं मूवी देखने आऊंगी वो कहेंगे तुम क्यों आई हो भाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू टॉक टू योर टीम। सो मेरे डिसीजंस कहाँ पर मुझे कब लेने हैं, कैसे लेने, ये भी मेरी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये भी एक स्किल है कि हाउ टू मेक डिसीजंस एट द राइट टाइम। अगर मैं बोलूं मेरे को डिसीजन किसी की, मैं शादी में जा रही हूँ और वहां शादी में वहां फेरे हो रहे हैं और वहां बैठी हूँ और वहां पे कॉल करके किसी को बोल रही हूँ, अच्छा भाई मेरे को ये काम कर दो, अभी लैपटॉप ओपन करो, किसी को बोलो लाओ मुझे लैपटॉप लेके दो, मुझे काम करना है, कोई बोलेगा ये पागल है, इतना काम दिखा रही है कि दुनिया में काम सिर्फ इसी के पास है, तो घर बैठे यहाँ क्यों आई है। मतलब दीज आर सच स्मॉल डेली लाइफ एग्जाम्पल जिससे हमें समझ आता है कि कब हमें किस चीज का डिसीजन कब लेना है, किस चीज पे कब काम करना है, किस चीज के बारे में कब सोचना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे आईक्यू पे डिपेंड करता है, हमारी माइंडसेट पे डिपेंड करता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं, अर्जुन अगर उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेता ढंग का कृष्ण के समझाने के बाद, बिकॉज कृष्ण एक्ट एज अ लीडर, तो हम सबको लाइफ में ऐसा एक मेंटोर चाहिए जो हमें जिंदगी सिखाने की कला, जिंदगी जीने की कला सिखाए, है ना। तो हमारी लाइफ में हर कोई रोल मॉडल होता है हमारा, हम किसी की लाइफ में उसके पापा रोल मॉडल है, किसी की लाइफ में उसकी मम्मा रोल मॉडल है, किसी की लाइफ में उसकी टीचर रोल मॉडल है। ये रोल मॉडल्स का क्या काम होता है, दीज रोल मॉडल्स आर द लीडर्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं, जो हमें, कई बार होता है ना, गर्ल्स मोस्टली कहती हैं कि मैं, मुझे बड़े होकर टीचर बनना है, क्योंकि मैं अपनी एक मैम को देखती हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा बच्चों से बात करती है, तो बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा बनना है। कई कहते हैं हमें डॉक्टर्स बनना है, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को देखा था कि सोशल सर्विस होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल हम सबने अपनी लाइफ में बनाया होगा, एंड दैट रोल मॉडल एक्ट एज अ लीडर ऑफ आवर लाइफ। वो हमें जिंदगी जीने के तरीके सिखाता है, सलीका सिखाता है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी। बहुत बार हमारे रिलेशंस में कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत अच्छे रिलेशंस को निभाता है, हर रिलेशन बहुत अच्छा निभा के चला जाता है, शादी में मामा मासी फूफा चाची कोई नाराज भी हो जाए वो बहुत प्यार से मना लेते हैं उनको, ये कला उनके अंदर होती है, तो हम सीखते हैं ये कला हमारे अंदर क्यों नहीं। आप बताइए आपने कैसे उनको इतनी जल्दी मना लिया, हमसे तो वो माने नहीं, होता है ना ऐसा। तो ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल्स बन जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशंस को बांधना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं सिखाते। तो रिलेशंस को मेंटेन करना जो सिखाएंगे, रिलेशंस को जो बनना सिखाएंगे, वो हमारे लीडर्स हैं हमारी लाइफ के, वो हमें जिंदगी जीने के सलीके सिखाते। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। Yes. सो लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग initiates provide opportunities for individual to develop leadership skills, whether by leading projects, mentoring teammates or taking an additional responsibility. So आप देखेंगे स्लाइड पे सामने जो लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ के साथ बहुत रिलेट करता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इफेक्टिव टीम बिल्डिंग, वो एक इंडिविजुअल को नेविगेट करती है, यानी सिखाती है चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है।
ऐसे ही एज अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स ऑफ लीडर्स ऑफ आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली में कभी कभी मोस्टली हमने बोला लाइफ इज द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जब बीइंग एज अ टीम हम पूरे लोग उस प्रॉब्लम को इकट्ठे खड़े होकर झेलते हैं तो प्रॉब्लम एकदम भाग जाती है। लेकिन अगर हम सब अलग अलग रहें, वो डिस्ट्रैक्शंस रहें, तो एक एक कॉर्नर में बैठ के रोता है, एक एक कॉर्नर में बैठ के रोता है, एक एक कॉर्नर में बैठ के रोता है। सो टीम जो है बननी हर जगह बहुत जरूरी है अगर हमें जिंदगी में सक्सेस पानी, बी इट एट प्रोफेशनल लाइफ और बी इट एट पर्सनल लाइफ। सो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है, और लीडर के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो हमें उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे वर्क करना सिखाए। सो चेंज मैनेजमेंट, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लीडर बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहां पे रिजिडनेस आ जाती है ना, जैसे अभी मैंने हिटलर की एग्जांपल ली, या हमने बात की कि जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती जिस कंट्री में, तो वहां बहुत रिजिडनेस होती है, तो लोग बहुत क्रूर टाइप के होते हैं, क्रूअल्स होते हैं। लेकिन जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वहां प्यार, झगड़ा, लड़ाई, मोहब्बत सब कुछ होता है। तो ये दीज आर स्पाइसेस ऑफ लाइफ जो बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। अगर हम सिर्फ प्यार 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 के साथ जिंदगी जिए ना, तो जरा सा दुख आता है तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा दुख आना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं झलक देता है कि हाँ दुख नाम की कोई चीज है, हाउ टू बियर दिस दुख, उस दुख से कैसे बाहर आए। तो लेकिन उस दुख में अगर हम सब साथ में खड़े हैं तो वो दुख दुख नहीं लगता। सो दैट इज द टीम वर्क, है ना। कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लीडर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब टीम जाके सपोर्ट करती है कि सर आई एम विद यू, या मैम आई एम विद यू, डोंट वरी, वी ऑल आर विद यू एंड विल डेफिनेटली अचीव दिस और टेक दिस प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट असाइन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, तो वो लीडर को कॉन्फिडेंस आता, नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है। सिमिलरली घर में ऐसा होता है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें कैसे ऐसे रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं ऐसे रहना है, that is very important, then we are able to say that we are leading a balanced life, we are leading a stable life। क्योंकि लाइफ ऐसा नहीं है कि पीसफुल लाइफ जो है या स्टेबल लाइफ जो है वो सिर्फ खुशियां ही खुशियां देती हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्टॉर्म्स, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, लव, अफेक्शन, डिस्ट्रैक्शंस, challenges, opportunities सब आती हैं। But the main and the most important thing is that if we have a strong team, if we have a good team, we can, हर चीज झेल सकते हैं हम अपनी जिंदगी, be it at professional or at personal level. But the main focus is that as a leader, we should always build a strong team. वो कहते हैं पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन वो 5 पांडव ने 100 कौरव पे विजय की with having a great mentor, great leader. हमें भी ऐसा चाहिए if we want to have a success in life. So this is all about today's session, and this is one of the thing which I want to discuss with you, that I have ये मेरे ही बच्चों ने क्लास में बनाया था। हम लोगों ने जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की बात की थी तो हमने कृष्ण जी को ध्यान में रखते हुए बात की थी, देन उन्होंने कृष्णा को ध्यान में रखते हुए आज के लीडर्स में कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को देखा था। तो इस तरीके से उन्होंने ये इमेज बनाई थी। तो आई थॉट कि जब मैं ये सेशन कभी लूंगी आपके साथ तो मैं ये शेयर करूंगी कि भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी को लेते हुए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, और उन एक्चुअल में भगवान कृष्ण एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो उन्होंने चेंज लेकर आए। उनकी एक वो थी ना सेइंग जिसमें उन्होंने क्या बोला था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना, प्यार और जंग में सब जायज है। कि आपने अगर देखा होगा भगवान कृष्ण हर चीज में छल कर जाते थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि छल करना, आपको पता है फॉरेनर्स जो है भगवान कृष्ण को ग्रेट पॉलिटिशियन मानते हैं। वो कहते हैं ही इज अ वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिक्स सीखनी है तो भगवान कृष्ण से सीखिए, उनके अंदर वो कला थी। तो उन्होंने कभी किसी को हर्ट करने के लिए कुछ छल नहीं किया, वो सिर्फ कि किस तरीके से गलत चीज को साइड पे रख के अच्छी चीज को प्रमोट करो। उसमें अगर कभी थोड़े कहते हैं ना, कोई झूठ अगर किसी की जान बचाता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो हमें ये वाली स्किल्स अपने अंदर लेकर आनी है कि किस तरीके से इट्स नॉट ओनली अबाउट झूठ, इट्स नॉट ओनली अबाउट छल, इट्स अबाउट कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव अ गुड कनेक्शंस इन योर लाइफ।
and that good connections, that good bonding with your loved ones, with the people who are associated with you, that gives you immense happiness, जो किसी भी luxurious life से बहुत important है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हम ये कहते हैं कि we are leading a balanced life, we are not just passing our life, because there is a difference between living a life and passing a life. So we all want living a life, we all want each and every moment of our life to live to the fullest, not to pass that moment. Is that okay? So this is all about today's session. So thank you so much. Any questions from your side? Wonderful session, Sakshi ma'am. Simply awesome. As usual. Thank you so much, ma'am. After explaining so well, do you think we still have questions? Ma'am, still if you have any question, you can ask. Definitely. You have said it beautifully. Thank you so much, ma'am. It means you all are very good, listeners and very good participants. I really have, I'm blessed to have you all with me. Thank you so much. I must say, आज ही मेरे को पता चला कि ये भगवान कृष्ण की saying है, everything is okay in love and war. हाँ, मैंने भी मैंने आई थिंक जब मैं शायद आई वाज इन क्लास 12 तब मुझे भी किसी ने ये चीज बताई थी, तब से मैंने रिकॉल की, क्योंकि वो ये हमने महाभारत में भी शायद एक बार ये आया था कि प्यार और जंग में सब जायज है। जब आई थिंक अर्जुन ने कुछ पॉइंट आउट किया था, ये काम करना माधव, ये काम करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा था पार्थ सब कुछ जायज है, प्यार और जंग में सब जायज है। तो ये बहुत बार मैंने लोगों से सुना है। तो मैंने गीता में कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैंने सुना है ये बहुत बार। बट ये तो दिखता है ना कि लाइक जैसे वो वाला था ना एक, जिसमें शकुनी मामा ने दुर्योधन को बोला था कि हमें भगवान, तुम जो है भगवान से कुछ मांगने जाना, और फिर जब वो मांगने जाते तो जानबूझ के उनको जो है दुर्योधन उनके सिर के पास आके खड़ा हो जाता है और अर्जुन पैर के पास होता है। तो आईज जैसे ही खुलती है तो कहते हैं ना, हमेशा जब बड़ों से आशीर्वाद लेना होता है तो हमें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आंखें जब खुलती हैं तो Very सामने true. जो पैर के पास है वही दिखता है, तो सारी ब्लेसिंग्स उसी को मिलती हैं। साइड पे कौन है क्या पता लगेगा। तो इसीलिए जब उन्होंने क्या कहते हैं उसको सारा आशीर्वाद दे दिया, तो बाद में शकुनी बहुत गुस्सा होता, तुम उनके पैरों के पास क्यों नहीं खड़े हुए जाकर, कह रहे ये कौन सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे महाभारत में हम देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स, बहुत लोग कहते हैं ये चीजें गलत है कि क्यों उन्होंने झूठ का सहारा लेकर ये चीज की थी, झूठ का सहारा लेकर ये चीज की। अब जैसे अश्वत्थामा मर गया, ये बात बोली थी, तो पर ये देखा जाए तो धर्म ये कहता है कि आपको धर्म के रास्ते पे चलना है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म यही कहते हैं, पर गलत कुछ ना करो, किसी का दिल मत दुखाओ, गलत कुछ मत करो। बिल्कुल सही। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को यहाँ याद आया, बड़ों की शिक्षा जो बच्चों तक जाती है। एक बार हमारे घर कोई आए हुए मेहमान आए हुए थे, काफी एल्डरली लेडी थी, तो उनके स्लीपर्स और मेरी मदर इन लॉ के स्लीपर्स ऐसे साइड पे रखे हुए थे। तो मेरा बेटा उधर से पास कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये स्लीपर्स साइड पे कर दो, और वो हमारी मेड थी, वो पोंछा लगाने आ रही थी, तो उस बच्चे ने हाथ से दोनों चप्पलें उठा के, दोनों एल्डरली थी, दादी थी दोनों, हाथ से उस बच्चे ने वो चप्पलें उठा के बाहर रखी। तो वो जो हमारे घर मेहमान आई हुई थी, उन्होंने बोला कि बेटा आपने हाथ क्यों लगाया, ये तो गंदे थे, चप्पलों को हाथ लगाओगे अब तुम्हें हाथ धोने पड़ेंगे। तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, वो तो दादी की चप्पलें है ना, दादी की चप्पलों को मैं पैर से दूर नहीं कर सकता था। तो इस चीज के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने वही बोला कि आपको किसने बोला ये, मेरे मम्मा बताती है कि बड़ों की चप्पलों को पैर नहीं मारते हैं, बड़ों की चप्पलों को हाथ से उठा के रखा जाता है। कोई बात नहीं दादी, मैं हाथ धो के आ जाऊंगा। तो वो छोटी छोटी वैल्यूज है, आपने जैसे बोला, वो हम अपने बच्चों में डालते हैं तो वो उनको लाइफ लॉन्ग वो साथ देंगी। वो आगे अपने बच्चों को भी यही बताएगा कि बड़ों की चप्पलों को पैर से साइड नहीं किया जाता है। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम अपने संस्कार अपने बच्चों को विथ रीजंस हम उनको समझाते हैं, तो वो उनको समझ में आते हैं और वो उसको लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो
assessment sheet I'll share in the group. And I'm eagerly waiting for you all on 17th to meet you all in person. Farah ma'am, are you okay? आज आप बहुत डाउन लग रहे हो. हाँ, आज मैं थोड़ा थकी हूँ क्योंकि कल मेरी फ्रेंड की शादी थी तो रात 5 बजे तक वहां जगना हुआ है, इस वजह से डाउन लग रही है. तो सॉरी, आज मैंने आपका सैटरडे सेशन रख नहीं लिया. नहीं मैम, मुझे खुद लेना था ये सेशन. ठीक है. सो थैंक यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू मैम. आज मैं बहुत दूर हूँ, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हूँ और यहाँ भी आज आप हमारा लग भी रहे थे बाहर हो. हाँ. मैं सबको दिखाना चाहूंगी इधर, शायद थोड़ा नेट का इश्यूज है, बिल्कुल जंगल के अंदर सेंटर पे हूँ. आज मैंने इसके लिए मोबिलाइजेशन के लिए आई विश Okay. दिखे. हाँ जी, हाँ जी. तभी आपकी वॉइस में भी ना बीच बीच में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है. दिख रहा है पूरा जंगल की रेंज है. हाँ, ये दिख रहा है. अब क्लियर दिखी है इमेज. यस. ये इधर सेंटर तो हम लोगों का इधर अंदर है. ओके. इधर वीविंग सेंटर हम लोगों का. अभी इधर हम लोगों की वीविंग होती है. ये सब हाथ से करती हैं लेडीज इधर. बट ये लोकेशन बहुत सुंदर है, ये मैं वही दिखाना चाह रही थी सबको. थैंक यू साक्षी मैम. Thank you so much and thank you all. ये Saturday को भी you all are with me. Thank you so much. So we'll meet on Monday at 3 p.m. So next session is on Monday. Okay. Thank Okay, you. ma'am. Thank you, Sakshi ma'am, for the wonderful session. Thank you all for joining. Thank you.